Today we'll do some important question based upon complex number. So पहला question है आपका miscellaneous से है. For two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equals to real part of z1 z2 minus imaginary part of z1 z2. Alright, so how we'll do this? Okay, let the z1 is a complex number which is of the form a1 plus iota b1. z2 हमने ले लिया a2 plus iota b2. So what we have to do, we have to multiply two number. लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है आपको? You have to multiply z1 and z2. So what you will do, a1 plus iota b1, a2 plus iota b2. What you will get? a1 a2 and then a2 b1 iota plus iota b2 a1 minus b1 b2, because iota square आएगा that will give you minus b1 b2. Okay, so now what we need to do, इसको exact एक proper format में लिखते हैं हम a1 a2 minus b1 b2 this plus imaginary केस में आपका क्या आएगा a2 b1 plus b2 a1 this value. So according to question we have to take only real part of z1 z2. So real part of z1 z2 is this one. So a1 a2 minus b1 b2. This is my left hand side. Okay, let's move to right hand side now. So when you move to right hand side, so right side के according हमें क्या करना है? रियल पार्ट ऑफ z1 लेना है और रियल पार्ट ऑफ z2 लेना है. तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज a1 और रियल पार्ट ऑफ z2 इज a2. तो रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस हमें करना क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इनटू imaginary part of z2. So real part of z1 is a1, z2 is a2. So a1 a2, imaginary is b1 or imaginary of z2 is b2. So you will get b1 b2. So this is 1, this is 2. So from 1 and 2, left hand side is equals to right hand side. This is what we are supposed to prove. कुछ नहीं करना. आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? जो चीज़ रिक्वायर्ड है स्टार्ट फाइंडिंग दैट, और z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में आप एक z अज्यूम कर लोगे. z1 z2 z3 zn जितना भी आपको पूछा है अकॉर्डिंगली आप अज्यूम करके डेफिनेशन में अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. बहुत सिंपल चैप्टर है ये आपका. नेक्स्ट इज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, एंड यू हैव टू प्रूव दैट होल स्क्वायर ऑफ x square plus y square is equals to a square plus b square upon c square plus d square. So what we have given, जो चीज़ given है उसको यूज़ करते हैं. हमें given है that x minus iota y is equals to root of a minus iota b upon c minus iota d. अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो we can eliminate this root. So squaring both sides give you what? x minus iota y whole square is equals to a minus iota b upon c minus iota d. Alright, if you remember हमने एक डेफिनेशन किया था कि अगर हम मॉडुलस ऑफ z करें और उसका स्क्वायर लें, या फिर हम मोड z स्क्वायर का मोड लें, that represents same thing. Also मॉडुलस ऑफ z1 z2 आपका इक्वल होता है z1 अपॉन z2. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम यूज़ करने वाले हैं. सी, अगर आप देखो रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है कि कहीं भी आपका इमेजिनरी नहीं है, तो इमेजिनरी ख़त्म करने के लिए हम अगर मॉडुलस ढूंढ लें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस केस में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट डायरेक्ट आ जाता है. सो लेट्स डू वन थिंग, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो x माइनस आयोटा y का अगर मॉड करें तो उसका स्क्वायर भी जस्टिफाइड होता है, एंड इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b का मॉडुलस अपॉन c माइनस आयोटा d का मॉडुलस. सो मॉडुलस ऑफ दिस इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड सेम फॉर दिस
a square plus b square c square plus d square. Alright, so this square will be cancelled out with this root. Now again squaring both sides, so you will get x square plus y square whole square, and you when square this side, so square will be cancelled out with root, so a square plus b square upon c square plus d square. This is what you have to prove, hence proved. नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, z इज इक्वल्स टू r cos theta plus iota sin theta. दिस फॉर्म वी नीड, एंड फॉर दिस कन्वर्ट करने के लिए आई नीड एक स्टैंडर्ड z, दैट इज व्हाट a प्लस आयोटा b. ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, बट हमें जो z गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस. तो z is what 1 plus 7 iota and 2 plus iota whole square gives you a square plus b square minus 2ab, that is 4 iota. So this is what 1 plus 7 iota. Iota square is minus 1, so 4 minus 1 will give you 3, and this part will be 4 iota. And now make it rationalize. 3 divide और multiply करते हैं इसको. 3 plus 4 iota. So what you will get, 3 minus 28 plus 21 iota plus 4 iota upon 9 plus 16, that will give you 25, and this is minus 25 plus 25 iota upon 25, this is what minus 1 plus iota. Alright, so सबसे पहले we are need to find tan alpha, थीटा निकालने के लिए. तो थीटा निकालने के लिए tan अल्फा निकालेंगे हम. तो दैट इज़ व्हाट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z. सो इमेजिनरी पार्ट इज़ 1 एंड रियल इज़ -1. सो अल्फा कम्स आउट, tan अल्फा इज़ 1, सो अल्फा कम्स आउट π/4. नाउ फॉर थीटा यू नीड टू चेक क्वाड्रेंट, एंड दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा हमारा हो जाता है पाई माइनस अल्फा. सो थीटा वुड बी पाई माइनस अल्फा, एंड थीटा इज व्हाट पाई माइनस π/4. थीटा इज इक्वल्स टू 3 π/4. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड r. r इज व्हाट, r हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे. दैट इज व्हाट रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज 1 square 1 square 1 square plus 1 square, that is what √2. So I got r is √2 cos theta is 3 π/4 plus iota sin 3 π/4. So this is your answer. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ लोगों ने ये एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर दिया. आई डोंट नो कि तुम लोग वीडियोस देखते भी हो कि नहीं ढंग से. मैंने tan अल्फा से कराया है, एंड दैट इज़ मोर इजी, क्योंकि आपका इस केस में हमेशा एंगल पॉजिटिव आएगा. बस आपको ये 4 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. मैं एक बार रिकैप करा देती हूँ. अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ जाता है तो थीटा इज स्ट्रेट अवे अल्फा. अगर सेकेंड में है तो थीटा इज पाई माइनस अल्फा. थर्ड में है तो थीटा इज अल्फा माइनस पाई. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज माइनस अल्फा. इट्स मोर इजी. आप एनसीईआरटी वाला वे कर सकते हो, बट इससे अगर करोगे तो आपका 2 मिनट में सम निकल आता है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन z1 एंड z2, एंड वी हैव टू फ्रेम दिस इक्वेशन, एंड देन वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस. सो मॉडुलस हमें फाइंड करना आता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट. सो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन में आपका z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, एंड z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1, एंड दिस इज व्हाट 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा plus iota. So this value comes out, this is 4, and in the denominator we get 1 minus iota. Alright, we know that modulus of z1 upon z2, यहाँ पे आपने रीजनिंग देनी है हर चीज़ की जो भी यूज़ करते हो, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2. यानी कि हम 4 का मॉडुलस अलग से ले सकते हैं और 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस अलग से ले सकते हैं.
अब 4 का मॉडुलस क्या है, रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है 0, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ आपका 1 का स्क्वायर एंड देन -1 का स्क्वायर, रीज़न क्योंकि आयटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज -1, सो दिस कम्स आउट 4 ओनली and this part is 1 plus 1 √2. When you simplify this is 2 to the 4, so the answer is 2 √2. For this question your reading should be very good. See, find real number x and y if this part is conjugate of this part. Conjugate क्या होता है, मैं इसका conjugate लूँ तो उसका जो कॉन्जुगेट का आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये आपका इसका कॉन्जुगेट गिवन है. सो व्हाट आई नीड टू डू, -6 -24 आयटा आपको नंबर दिया हुआ है, इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू x माइनस आयटा y एंड 3 + 5 आयटा. ऑलराइट, सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, टू चेंज sign of imaginary part, so -6 + 24 iota, and this is what x minus iota y, 3 + 5 iota. We are almost done. What we have to do, अगर हमारे पास सिर्फ इस साइड x minus iota y बचता है तो I can compare real and imaginary part to get the value of x and y. Okay, so I can take this into the denominator. So 6 + 24 iota upon 3 + 5 iota. So this value is equals to x minus iota y. Alright, this you know how to solve this, divide and multiply by 3 minus 5 iota. So -6 + 24 iota upon 3 + 5 iota into 3 minus 5 iota. 3 minus 5 iota is equals to x minus iota y. So by simplifying this you get, I'm writing straight away, you'll get the value 3 + 3 iota. So this is equals to x minus iota y. So from by comparing real and imaginary part, I get x is equals to 3 and y is equals to -3. So this is the answer.